My lovely students, welcome to Pathological. With this session, we are starting the topic of 3D mensuration. और इस सेशन में we'll be discussing prism and pyramid. So what is a prism? What is a pyramid? How to find out volume or lateral surface area or total surface area of a prism or a pyramid. Start करते हैं सेशन को. And if you've not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. And you can also join Telegram channel Pathological for this. ठीक है? So we are starting with prism and pyramid. So basically a prism is a 3D figure with congruent identical bases. ठीक है, bases can be polygonal, base can be a triangle or a rectangle or can be a circle. So two identical bases, identical parallel bases connected with rectangular faces. For example, it could be a cuboid. In case of cuboid, base is a rectangle and the top is also a rectangle. ठीक है. Similarly, we can have a triangular prism in which base will be a triangle and top will also be a triangle, and both triangles will be parallel as well as identical. This is a triangular prism. Or in case of a circular prism, we have example of cylinder. The base is a circle, top is also a circle. अब शेप में नहीं लग रहा है कि आइडेंटिकल है, बट दोनों आइडेंटिकल होंगे. ठीक है. So cylinder is also a type of prism. Now as far as pyramid is concerned, so in the pyramid we have a base. Base is a polygon. It could be a circle or a triangle or a rectangle or a square or a pentagon or a hexagon. But top pe we have only a vertex, only apex, a point at the top. So polygonal base, or it could be also be a circular base in case of a cone. So polygonal base connected with triangular faces to apex. For example, if base is a circle, so that is a cone. Or if base is a triangle, so all vertices, all corners of the triangle are connected to a top point, and this figure is called a tetrahedron. Tetra यानी कि 4 faces, tetrahedron, because it has 4 triangular faces. Or if base is a square, then it will be a square pyramid. So there are two differences between prism and pyramid. Prism has 2 identical parallel bases. Additionally, all faces of the prism, ठीक है, lateral faces are rectangular faces. ठीक है, जो lateral faces हैं, जो side में faces हैं, वो सारे के सारे rectangular faces. जबकि in case of a pyramid, there is only one base because top पे there is a point only, there is apex only, and the faces in a pyramid, the faces on the sides are triangular faces. Okay, clear है बात? अब स्टार्ट करते ही एक दो बेसिक बातें जो बिल्कुल फंडामेंटल है, बट उनको भी एक बार देख तो लेते हैं कि व्हाट इज अ फेस, व्हाट इज अ एज एंड व्हाट इज अ वर्टेक्स. फेस इज बेसिकली अ फ्लैट surface. Flat surface. For example, if you are sitting in a room, so in all probability that room might be a cuboid.
ठीक है. So if that is a cuboid, so there might be 4 walls in total. So those 4 walls are 4 faces. ठीक है. Wall on the left, on the right, on the front, and at the back. So there are 4 walls facing you, and then there is a top face, that is roof, and bottom face, that is floor. Total 6 faces in a cuboid. Isn't it so? Six faces in case of a cuboid. For example, this is a face. Similarly, at the line where two faces meet, that is a edge. जहां पे कि दो फेस मीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेयर टू वॉल्स मीट, दैट इज अ एज. So this, for example, here, because here two faces are meeting, so this is the edge. And how many edges are there in your room? If that is a cuboid shaped room, so in that case, there are 4 edges at the bottom, then 4 edges at the top, and then 4 edges laterally on the sides. So 4 plus 4 plus 4, there are total 12 edges in a cuboid. And edge is where faces meet. And vertex is the point where edges meet. Okay, so where edges meet, that is a vertex. And in a cuboid, how many vertices are there? So there are 4 vertices at the bottom and 4 vertices at the top. Total 8 vertices are there. Is that part clear? Okay, what is the face? What is the edge? What is the vertex? Now coming back to prism only. Okay, what is the volume of a prism? Let us draw a simple prism. A prism with triangular bases. Volume of any prism is always equal to base area multiplied by height. Base area multiplied by height. So in this case, area of the triangle multiplied by height. Okay, if height is equal to h, so area of the triangle multiplied by height. और side lengths मान लेते हैं. Let us say those are A, B, and C. Similarly, lateral surface area of a prism is equal to perimeter multiplied by height. So if we open this particular prism, अगर इसको ओपन करें तो क्या होगा? ओपन करते ही ऑल फेसेस आर, ऑब्वियसली जो साइड में फेसेस हमारे बन रहे हैं, ऑल दिस फेसेस आर रेक्टेंगुलर फेसेस. तो जैसे ही इसको ओपन करेंगे, दिस विल बी समवॉट लाइक दिस. This is A, this is B, this is C, and height is h. And then there will be a triangle at the top and a triangle at the bottom. कहीं पे बना सकते हैं उनको. ठीक है. So lateral surface area is this portion, which is in shape of a rectangle. So lateral surface area is equal to, rectangle है तो length into breadth. Length हमारा है a plus b plus c multiplied by breadth is equal to h. And a plus b plus c is nothing but perimeter only. So perimeter into height. That is why formula for lateral surface area is perimeter into height. Or total surface area के लिए will be also be adding the area of the base at the bottom as well as top. So total surface area is equal to lateral surface area plus 2 times base area, because there are 2 bases in a prism. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. ओके, सो अब क्वेश्चंस करते हैं स्ट्रेट अवे. फर्स्ट क्वेश्चन. A right prism has an equilateral triangular base with side 6 cm. If the height of the prism is 10 cm, find its lateral surface area, total surface area, and volume. Pause the video and solve it yourself. So right prism is there.
राइट यानी कि बेसिकली राइट प्रिज्म का मतलब क्या हुआ, वाई वी से राइट प्रिज्म राइट सिलेंडर, बिकॉज दैट इंप्लाइज कि जो बेस है हमारा उससे जो प्रिज्म है दैट इज एट राइट एंगल. ठीक है, सो इफ दिस इज द बेस, तो प्रिज्म इज एट राइट एंगल, दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट प्रिज्म. ओके, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस इज देयर. यानी all sides of the base are equal and all sides are equal to 6. And height is 10. So volume will be equal to base area into height. Base area in case of equilateral angle will be root 3 by 4 into side square multiplied by height. So side is equal to 6 for base, root 3 by 4 into 6 into 6 into 10. So 90 root 3 centimeter cube. This will be our volume for this prism. Okay, lateral surface area. This will be equal to perimeter into height. और perimeter क्या होगा, 6 plus 6 plus 6 18, 18 into 10, 180 centimeter square. And total surface area will be equal to lateral surface area plus 2 times base area. And base area is equal to root 3 by 4 a square. क्या है, root 3 by 4 into 36, so 9 root 3. So 180 plus 2 into 9 root 3. So 180 plus 18 root 3 centimeter square. This will be our total surface area. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ratio of the sides of the base of a triangular prism is 8:15:17. तो साइड्स का हमें रेशियो गिवन है, साइड्स की वैल्यू गिवन नहीं है. हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 1040 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिज्म? सो साइड्स का रेशियो गिवन है 8:15:17 and 8, 15 and 17. These form a Pythagorean triplet. So the base must be a right angle triangle. Let us say sides are 8x, 15x and 17x and height is 7. Total surface area is 1040 and total surface area will be equal to lateral surface area plus 2 times base area. Lateral surface area will be equal to perimeter into height. Perimeter will be 15 plus 8 plus 17, 40x. So 40x into height, which is 7, plus 2 times base area, and base area will be equal to, since this is a right angle triangle, so base area will be 1 by 2 into base, in this case base यानी कि 8x, base of the right angle triangle. So 1 by 2 into 8x into 15x. 15x. So this is 280x plus 120x square. And this total is 1040. 40 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 times x plus 3x square. This is equal to 26. So x इक्वल टू 2 पुट करते ही सेटिस्फाई कर जाएगा ये. हाँ, x इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है. x मस्ट बी इक्वल टू 2. तो साइड लेंस यहाँ से मिल जाएंगी 30, 16 एंड 34 विल बी साइड लेंस. क्वेश्चन पूछ रहा है वॉल्यूम क्या होगा. सो वॉल्यूम इन दिस केस विल बी इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट. तो बेस एरिया क्या आ जाएगा हमारा, दिस विल बी 1 by 2 into 8x which is 16 now, 15x 30 now, multiplied by height which is 7. So 8 into 30 into 7, 240 into 7. So 24 sevens are 1680 centimeter cube will be our volume. Clear है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
The base of a right prism is a trapezium whose parallel sides are 11 centimeter and 15 centimeter, and the distance between them is 9 centimeter. Then the volume of the prism is 1731.6 centimeter cube. Then find the height of the prism. So base given है हमें trapezium this time, and in a trapezium, two opposite sides are parallel, isn't it so? Two opposite sides are parallel, and area of trapezium is equal to 1 by 2 times sum of parallel sides. If length of parallel sides is a and b, so 1 by 2 times sum of parallel sides multiplied by height. This is area of the trapezium. Because base trapezium है, base का हमें एरिया निकालना पड़ेगा, और 11 and 15 are side lengths with parallel sides and distance between them is 9. So base area will be equal to 1 by 2 into 11 plus 15 multiplied by 9. So 26 by 2, 13 into 9, 117 centimeter square. This will be base area. और वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम होगा बेस एरिया इंटू हाइट. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 117 इंटू हाइट विच इज़ 1731.6. वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ना करते तो ज़्यादा अच्छा था, डायरेक्टली ही लिख लेते ज़्यादा बेटर रहता. ठीक है, बिकॉज 13 का मल्टीपल है, सो 9 यहाँ पे बच जाने वाला है. 13 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 13 1 13, 13 3 39, 13 3 31, 133.2. देन 9 से कैंसिल कर दो. सो 9 1 9, 9 4 1 14.8. तो हाइट कम्स आउट टू बी 14.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी. ओके, एक साथ ही लिख देना था डायरेक्टली कि 1 by 2 इंटू 11 plus 15 into 9 into h. तो दिस वॉज इक्वल टू 1731.6. फिर यहाँ से 13 बचता, 13 से सिंप्लीफाई कर लेते. ठीक है, 133.2 बचता. तो कहानी ज़्यादा आसान रहती, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है. 14.8 हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A right prism has a regular hexagonal base of side 4 centimeter. If the height is 10 centimeter, find its volume. तो हाइट भी गिवन है और बेस हमें गिवन है, रेगुलर हेक्सागन है. रेगुलर हेक्सागन यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ द बेस. डायग्राम सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बना रहे हैं, अदरवाइज डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है. स्ट्रेट अवे एरिया निकालो, आगे बढ़ो. सो बेस एरिया क्या होगा? नाउ सिंस दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, so in case of regular hexagon, base is composed of 6 equilateral triangles. If we connect all the vertices of the regular hexagon with the center, so all sides are equal to side length of regular hexagon. All sides of triangles are equal to side lengths of regular hexagon. यानी there are total 6 equilateral triangles. So area will be 6 times area of one equilateral triangle, which is root 3 by 4 a square. So basically this becomes 3 root 3 by 2 a square. तो या तो इसको याद करो डायरेक्टली, अदरवाइज 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 3 रूट 3 by 2 a स्क्वायर, दिस इज द एरिया फॉर अ रेगुलर हेक्सागन. तो बेस एरिया मिल गया यहाँ से, एक ही जगह 4 पुट कर देंगे, हाइट गिवन ही है, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 3 रूट 3 by 2 into 4 into 4 into 10. So that is 80 into 3, 240 root 3 centimeter cube. Volume will be 240 root 3 centimeter cube. ओके, क्लियर है? अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा यहाँ पे, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उसको भी कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट से. तो क्या आने वाला है लेटरल सरफेस एरिया हमारा? लेटरल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू पेरीमीटर इनटू हाइट. और पेरीमीटर हमारा क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल टू 4, तो पेरीमीटर विल बी 4 into 6 मल्टीप्लाइड बाई हाइट विच इज इक्वल टू 10, दैट इज 240. और टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया. और बेस एरिया हमारा क्या आया था? दिस वॉज 24 रूट 3, तो 240 प्लस 48 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी टोटल सरफेस एरिया. ओके, क्लियर है?
So now let us discuss pyramid, volume and surface areas of a pyramid. To understand a pyramid better, एक काम करते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन अ रूम, ठीक है. सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी द बेस ऑफ द रूम मस्ट बी अ रेक्टेंगल, या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, ठीक है. सो लेट अस से बेस इज अ स्क्वायर. सो टॉप पे सेंटर पॉइंट ऑफ द रूफ, ठीक है. सो एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द रूफ इफ देयर इज अ फैन, सो लेट अस से यू आर कनेक्टिंग ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द बॉटम, सारे के सारे कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दो टॉप से, ठीक है. फैन पे फॉर एग्जांपल तुमने एक रोप बांध दिया, हर एक कॉर्नर से कनेक्ट कर दिया. अब क्या हुआ, ये जो शेप बना तुम्हारा, दिस शेप इज अ पिरामिड, ठीक है. टॉप पे सेंटर पे देयर इज अ पॉइंट, ऑल फोर कॉर्नर्स आर कनेक्टेड विद दैट पॉइंट, so that is a pyramid. Now प्रिज्म में चीज़ें आसान थी, पिरामिड में थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें, 3D में इमेजिनेशन थोड़ा और बेटर करना पड़ेगा. बिकॉज एक तो हो गया हाइट, हाइट तो यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है. एपेक्स को इफ वी आर कनेक्टिंग विद, इफ दिस इज अ स्क्वायर, बेस इज अ स्क्वायर, तो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, that is where height will be dropped perpendicularly from the apex. So this length here, this will be height, ये तो हाइट हो जाएगा, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बेस, तो बेस पे हमने टॉप से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सो दैट इज हाइट, दिस विल बी हाइट. क्या ये क्लियर है, ठीक है. अब ये तो हो गया हमारा हाइट, वर्टिकल हाइट. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल ऑल्सो बी अ स्लांट हाइट, slant height that will be connecting midpoint of the side of any side to the apex. This height here will be a slant height, and this will be perpendicular to the base, to this side, perpendicular to this side जिस पे हम slant height drop कर रहे हैं. And we will be representing slant height with L. Similarly, जो edge है हमारी, edges will be called slant edge. This here, this is slant edge. Let us say this is equal to E. तो वर्टिकल हाइट, स्लांट हाइट एंड स्लांट एज. ओके, इसको समझने के लिए एक बार फिर से थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन करना पड़ेगा. बेस पे हमने हाइट तो देख ही ली, ठीक है. सो दिस इज हाइट, लेट अस से ऑन द बेस, बेस इमेजिन करो कि बेस है हमारा, ठीक है. और फिर ये हमारा हो गया स्लांट हाइट. ओके, क्लियर है. अब ये जो स्लांट हाइट है हमारा, दिस इज एट एन एंगल फ्रॉम द बेस, तो बेस पे एक एंगल पे है, बट जो साइड है हमारा, साइड पे परपेंडिकुलर होगा. तो दिस इज द साइड, दिस इज अवर स्लांट हाइट. तो स्लांट हाइट बेस पे तो एक एंगल पे है, बट ये देख पा रहे होगे, अप्रिशिएट कर पा रहे होगे इस बात को कि जो साइड है हमारा, साइड पे दिस इज परपेंडिकुलर, इजंट इट सो. तो साइड पे परपेंडिकुलर है हमारा, तो हमें जो भी ट्रायंगुलर फेसेस मिलेंगे, बिकॉज पिरामिड में सारे के सारे फेसेस हमारे जो साइड में होंगे वो सारे के सारे ट्रायंगुलर फेसेस होंगे. भाई प्रिज्म में सारे फेसेस हमारे रेक्टेंगुलर थे जो साइड में थे. लैटरल फेसेस, ऑल लैटरल फेसेस इन प्रिज्म वर रेक्टेंगल्स, इजंट इट सो. बट इन पिरामिड्स ऑल फेसेस, लैटरल फेसेस विल बी अ ट्रायंगल. और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. और वो हाइट कौन सी होगी, क्योंकि इन ट्रायंगल्स में हाइट होगी हमारी लैटरल हाइट. तो फॉर एनी ट्रायंगल द हाइट विल बी लैटरल हाइट एंड नॉट वर्टिकल हाइट, क्योंकि ये ट्रायंगल्स हमारे टिल्टेड हैं, ठीक है. दैट इज वाई 1/2 इंटू स्लांट हाइट इंटू बेस, दैट विल बी आवर एरिया ऑफ एनी ऑफ द फेसेस, इजंट इट सो. तो वॉल्यूम इन केस ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट. और इस हाइट की हम बात कर रहे हैं, दिस इज वर्टिकल हाइट यानी h, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट. तो बेसिकली प्रिज्म में वॉल्यूम वॉज बेस एरिया इंटू हाइट, बट इन केस ऑफ अ पिरामिड वॉल्यूम इज 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि 1/3 ऑफ दैट ऑफ द प्रिज्म विद सेम बेस एरिया एंड सेम हाइट. अगर बेस एरिया और हाइट सेम है, सो इन दैट केस रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड इज 3:1. प्रिज्म का 3 टाइम्स होगा इन कंपेरिजन टू पिरामिड. क्लियर है. तो यही सेम अगर हम कंपेरिजन करें फॉर एग्जाम्पल इन सिलेंडर एंड कोन, क्योंकि सिलेंडर क्या हो गया हमारा, सिलेंडर इज टाइप ऑफ प्रिज्म एंड कोन इज अ टाइप ऑफ पिरामिड, और दोनों का बेस हमारा सर्कुलर है. तो इफ वी कंपेयर कि सेम बेस एरिया यानी कि सेम रेडियस ऑफ द बेस
for the cylinder as well as cone, तो same base area for cylinder and a cone and same height. In that case, volume ratio for cylinder and a cone will be 3:1. So ये बात होगी वॉल्यूम की. Similarly, lateral surface area. So in this case, lateral surface area equal 1/2 into perimeter into slant height. तो एक तो 1/2 ऐड हो गया क्योंकि इन केस ऑफ प्रिज्म सारे के सारे फेसेस हमारे क्या थे, रेक्टेंगल थे, तो वहां पे था बेस इंटू हाइट, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल था. बट यहाँ पे क्योंकि ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट कौन सी होगी, स्लांट हाइट होगी, बिकॉज सारे के सारे जो हमारे लेटरल फेसेस वो टिल्टेड है. तो 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू लेंथ. ठीक है, अगर यहाँ भी देखना है तो लेट अस से साइड लेंथ हमारी है स्क्वायर है ये, पर स्क्वायर की बजाय इसको अगर रेक्टेंगल मान लिया होता हमने, ठीक है, स्क्वायर ही मानते हैं फॉर एग्जाम्पल. तो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए. तो इन दिस केस हमारा एरिया क्या आ जाएगा, एरिया किसी भी एक फेस का निकालो, लेटरल फेस का, तो एरिया फॉर वन फेस विल बी 1/2 इंटू ए इंटू एल. ऐसे देयर आर 4 फेस, मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो 1/2 इंटू 4a इंटू एल. 4a हमारा क्या है, दिस इज पेरीमीटर ओनली, एंड टोटल सर्फेस एरिया विल बी इक्वल टू लैटरल सर्फेस एरिया प्लस बेस एरिया भी ऐड हो जाएगा, और क्योंकि एक ही बेस है टॉप पे तो पॉइंट ही है, तो प्लस 1 टाइम्स बेस एरिया, दिस विल बी आवर टोटल सर्फेस एरिया. So these all are formulas of volume and surface areas for a pyramid. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब ये बात समझ गए हो अगर, तो फिर हम हाइट और स्लांट हाइट और स्लांट एज का रिलेशनशिप भी देख लेते हैं. ओके, दिस इज हाइट, and for slant height we are connecting midpoint of a side to the top. This is equal to L. Now connect this point to this point. Okay, so if side length is equal to A, so this length here, this will be A/2. A/2 होगा और परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, if this base is ABCD, this is the intersection of diagonals which is O, and top let us say point is P. So if this point here, this is X, so OX will be equal to AB/2, क्योंकि इसको एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, पूरा ये हो जाएगा. ठीक है, और ओ वाई अगर उस साइड में वाई मान लेते हैं तो ओ वाई विल बी इक्वल टू एक्स, दैट इज वाई ओ एक्स इज इक्वल टू A/2. ठीक है, सो एक्स हमारा A/2 है विच इज इक्वल टू A/2, एंड हाइट इज इक्वल टू एच, तो यहाँ से एल निकल आएगा बिकॉज एल इज हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल. ट्रायंगल POX में एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस A/2 होल स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4. क्लियर? ठीक है, सिमिलरली if you also calculate length of slant edge, let us say this is equal to E, PC is equal to E, एंड इसके करस्पॉन्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं. OC हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. OC क्या है, OC इज हाफ ऑफ द ट्रायंगल बिकॉज AC इज द ट्रायंगल. अगर साइड लेंस हमारी A और A हैं बेस पे, बेस ABCD में, दिस इज A, दिस इज A, तो ट्रायंगल विल बी A√2, एंड OC इज AC/2, तो AC इज A√2, तो डिवाइड बाई 2, यानी कि A डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा OC. OC विल बी A डिवाइडेड बाई √2. अब फोकस करते हैं POC ट्रायंगल पे. तो POC में क्या है, PO इज परपेंडिकुलर टू OC. अब 3D में थोड़ा बहुत इमेजिन करना पड़ेगा. ठीक है, PO इज परपेंडिकुलर टू OC. OC इज A/√2 और PO तो H है हमारा, और PC इज इक्वल टू E विच इज स्लांट एज. अगेन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल H स्क्वायर प्लस A/√2 होल स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर बाई 2. Is the relationship clear? Relationship between height, slant height and slant edge. Okay.
अब इसी को और बढ़िया तरह से समझना है तो हम स्लांट एज एंड स्लांट हाइट का रिलेशनशिप भी देख सकते हैं। फोकस ऑन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल हियर। पी एक्स सी, पी एक्स इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो एक्स सी पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, पी एक्स सी, पी एक्स इज एल, पी सी इज ई, और एक्स सी क्या है, साइड बाई टू होगा क्योंकि मिड पॉइंट है एक्स हमारा, बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, एक्स सी इज इक्वल टू ए बाई टू, एंड हेंस ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर। ई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर। देख सकते हो यहाँ से भी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर, एड ए स्क्वायर बाई फोर फर्दर, तो एच स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए स्क्वायर बाई फोर, यानी कि एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ओके, क्लियर है। ये तो बात हो गया हमारा व्हेन द बेस इज अ स्क्वायर। अगर बेस हमारा एक ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, फॉर एग्जांपल रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, pyramid with four sides, four faces, थोड़ा सा फेस बढ़िया नहीं बना, दोबारा से बनाते हैं इसको। अब ठीक है, तो देर आर फोर फेसेस, ठीक है, और सिंस देर आर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन तो बेस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ लेट अस से इक्वल टू ए, एंड सिमिलरली जो हमारे जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, लैटरल फेसेस हैं, वो भी सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं, एंड दोज आर आल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, सो ऑल दोज लेंथ्स आर इक्वल टू ए। ओके, सो हाइट ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द टॉप। नाउ दिस हाइट इज परपेंडिकुलर टू द बेस, तो बेस पे कहाँ पे जाएगा, दिस विल बी hitting the gravity center or the centroid, and in an equilateral triangle, if side lengths are equal to a, so if we draw the median, so centroid divides median into 2:1. If side lengths are a, b and c, and this point is d, so a, b, c, and this point here, this is equal to d, so in that case ad is equal to median है, that is equal to a root 3 by 2, because median is also perpendicular to the base, or point G, which is the centroid of the triangle, divides median in the ratio 2:1. So AG is equal to A root 3 by 2 and AD into 2 by 3, which is A upon root 3. And similarly GD is 1/3 of A root 3 by 2, which is A upon 2 root 3. And if you can recall, so A by root 3, this is circumradius of the equilateral triangle, and A upon 2 root 3, this is in radius of the equilateral triangle. This is circumradius and this is in radius. Okay? ठीक है, सो इन दिस केस हाइट अगर हमारा, इफ हाइट इज इक्वल टू एच, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू ए अपॉन 2 root 3, एंड देन स्लांट हाइट क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ एल स्लांट हाइट, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 root 3
होल स्क्वायर, ठीक है, ए अपॉन 2 रूट 3 होल स्क्वायर. सो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 12. और स्लांट एच से कनेक्ट करेंगे तो फिर हमें हाइट की एच की भी वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज एच का भी यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू होगा, बिकॉज स्लांट एज इज ऑल्सो इक्वल टू ए. स्लांट एच भी तो इक्वल टू ए है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए, and this here, this is equal to a upon root 3. So now focus on this triangle. A by root 3 h, and this is a. So h square plus a square by 3 is equal to a square, यानी कि h square आ रहा है equal to a square minus a square by 3. So that is 2a square upon 3, and hence h is equal to the square root of 2 by 3 times a. That is equal to h. और वैल्यू ऑफ h पुट कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमें l की वैल्यू मिल जाएगा कि l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर विच इज 2a स्क्वायर बाई 3. तो 2a स्क्वायर बाई 3 प्लस a स्क्वायर बाई 12, तो 9a स्क्वायर बाई 12. यहाँ से l इक्वल टू आ जाएगा 3a बाई 2 रूट 3, और √3 टाइम्स a बाई 2. ओहो, इतनी मेहनत क्यों की एल निकालने के लिए? एल तो स्ट्रेट अवे दिख ही रहा था, बिकॉज एल क्या है हमारा, एक जो ट्रायंगुलर फेस है उसका हाइट ही तो है. ठीक है, हाइट ही तो है, तो L√3a/2 तो आना ही आना था. फर्जी मेहनत की इतनी सारी, बहरहाल कनेक्शन समझ गए होगे. ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रॉन क्या क्या आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, यानी √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट. और हाइट क्या होगा, कैपिटल एच की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है कि नहीं? तो कैपिटल एच की वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल एच विल बी रूट ऑफ 2a स्क्वायर बाई 3, यानी कि a इंटू रूट ऑफ 2/3. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 रूट, एक सेकेंड, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a³ अपॉन 2 √2. मल्टीप्लाइड बाई 1/3 भी तो करेंगे ना, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, तो a³ अपॉन 6 √2 हो जाएगा. ठीक है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, सो a³ अपॉन 6 √2, दैट विल बी आर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन. ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अब वॉल्यूम तो आ गया हमारा, लेटरल सरफेस एरिया, तो 3 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, उनका एरिया, तो 3 टाइम्स ऑफ √3/4 a स्क्वायर, 3√3/4 a स्क्वायर. और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, दैट विल बी एडिंग वन बेस एरिया एज वेल, दैट विल बी 4√3/4, यानी कि √3 टाइम्स a स्क्वायर, 4 टाइम्स √3/4 a स्क्वायर, यानी कि √3 a स्क्वायर. दिस विल बी वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन. ओके, क्वेश्चंस करते हैं स्टेट अप. सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रिज्म एंड पिरामिड सेम बेस एरिया सेम हाइट, तो रेशियो हो जाएगा 3:1. Next question. A prism and the pyramid have the same volume if their height are in the ratio 2:3. To find the ratio of their base areas. तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम सेम है प्रिज्म का और पिरामिड का, और हाइट्स का रेशियो गिवन है 2:3. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म विल बी बेस एरिया इंटू हाइट. दैट इज बेस एरिया इज इक्वल टू BA1. ठीक है, A1 है, A1 मान लेते हैं. सो इफ बेस एरिया फॉर द प्रिज्म इज इक्वल टू A1, तो A1 इंटू हाइट, और हाइट हमारा क्या है 2:3 रेशियो, तो 2 ही मान लेते हैं, तो A1 इंटू 2, दिस विल बी वॉल्यूम फॉर प्रिज्म. और वॉल्यूम फॉर द पिरामिड विल बी बेस एरिया इंटू 1/3 इंटू हाइट, और हाइट हमारी 3 है. ठीक है, 2x 3x भी मान सकते हैं, 2 और 3 मान लिया हमने यहाँ पे, एंड बोथ आर इक्वल, वॉल्यूम इक्वल है. सो 3 से 3 गया यहाँ पे, A1/A2 विल बी इक्वल टू 1/2.
तो रेशियो ऑफ बेस एरियाज विल बी इक्वल टू 1/2, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्या है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड विद स्क्वायर बेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड आउट करना है। स्क्वायर बेस है, साइड 10 सेंटीमीटर है और हाइट 12 सेंटीमीटर है। हाइट इज 12। So total surface area will be equal to lateral surface area plus base area, और बेस स्क्वायर है तो पहले हमें स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा। तो दिस इज 12, दिस विल बी 5, सो स्लांट हाइट L विल बी इक्वल टू 13। 12, 5 and 13 का, तो लेटरल हाइट विल बी इक्वल टू, स्लांट हाइट विल बी इक्वल टू 13। ओके, सो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? दैट विल बी 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस विच इज 40 मल्टीप्लाइड बाई slant height which is equal to 13 plus base area which is 10 square, so that is 260 plus 100 and hence 360 centimeter square, 360 centimeter square। ओके, क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा एक्चुअल में जब पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, अभी जो हमने पूरा देखा, तो पहले प्लान मेरा एक्चुअल में ये था, एक गलती मैंने ये कर दिया कि रेगुलर टेट्राड्रॉन बनाने के बजाय टेट्राड्रॉन बनाना था, जो कि रेगुलर नहीं होता है, यानी कि हाइट डिफरेंट होता। तो हाइट पे हमारा आंसर डिपेंड करता, हाइट कुछ और वैल्यू ले लेते, यानी कि बेस हमारा एक इक्वल ट्रायंगल लेते हैं, बट ऊपर के जो ट्रायंगल्स होते हैं वो डिफरेंट ट्रायंगल्स होते हैं, उनका साइड लेंथ इक्वल नहीं होता। तो फिर रिलेशनशिप ये जो हमने पूरा तामझाम किया है, सारी की सारी चीज़ें अप्लाई होती है प्रॉपर्ली, उसीलिए समझा ही रहते। ठीक है, रेगुलर टेट्राड्रॉन ले लिया तो फिर चीज़ें बिल्कुल आसान होगी, उसके इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसमें तो सारी सारी वैल्यूज हमें दिख ही रही हैं। अदरवाइज एक डिफरेंट हाइट कुछ और होती है तो फिर रिलेशनशिप हमारे सारे के सारे काम आते हैं। ठीक है, तो ये समझ में तो आना ही चाहिए, तो जरूरी थोड़ी है कि रेगुलर टेट्राड्रॉन, रेगुलर नहीं होगा टेट्राड्रॉन, इन जनरल होगा तो वहाँ पे हमारी हाइट डिफरेंट होगी, बिकॉज फिर हमारे स्लांट एज विल नॉट बी इक्वल टू ए, वो तो डिफरेंट होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कर ही लिया हमने, ये तो कर ही लिया है। ठीक है, तो इसकी जगह पे जनरल वाला जो केस देख रहे थे उसको देख लेते हैं एक बार फटाफट से। बेस हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और फिर हाइट हमारी एच है। So this here will be a upon 2 root 3. This will be a upon root 3. स्लांट एज अगर हमने ई माना है तो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल नेम कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस पॉइंट हियर इज ओ, टॉप इज इक्वल टू पी। तो ट्रायंगल पी ओ बी में पी ओ बी, तो ओ बी इज इक्वल टू ए बाई रूट 3, पी ओ इज इक्वल टू कैपिटल एच और पी बी इज इक्वल टू स्लांट एज, तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर। Similarly, if we draw a triangle, this point, let us say this is equal to D, तो POD में PD क्या होगा? PD will be slant height, and PO is equal to capital H. OD is equal to A upon 2 root 3 and PD is equal to L. So L square will be equal to H square plus A square by 12. ठीक है,
tetrahedron of side length A and height h. तो यहाँ पे हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? लैटरल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, एक ट्रायंगुलर फेस का एरिया क्या आ जाएगा, क्योंकि हाइट हमारी स्लांट हाइट इज इक्वल टू एल और बेस हमारा ए है, तो 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू एल, और पेरीमीटर विल बी 3 है, तो 1/2 इंटू 3a इंटू एल, दिस विल बी लैटरल सरफेस एरिया 3/2 al. ठीक है, एल डिपेंड करेगा हमारा एच और ए पे, और टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 3/2 al प्लस बेस एरिया विच इज √3/4a², and volume will be equal to base area into height into 1/3. So 1/3 into base area is √3/4a² into capital H. Okay. Is this part clear? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Next question. A certain convex polyhedron has 12 vertices and 30 edges. So how many faces does it have? Vertices और edges given है, हमें find out करना है कि faces कितने होंगे. So there is a relationship that is always there between vertices and edges and faces. तो उसको समझने के लिए पहले प्रिज्म पिरामिड में वर्टिसेस, एजेस और फेसेस देखते हैं इन प्रिज्म एंड पिरामिड. So if sides of the base are equal to n in a prism and in a pyramid, तो बेस के साइड्स अगर n है यानी कि n गॉन है हमारा बेस, तो इन दैट केस हाउ मेनी फेसेस विल बी देयर? फेसेस इन अ प्रिज्म एंड फेसेस कंपेरेटिवली इन अ पिरामिड, कितने फेसेस होंगे? तो अगर हमारा n गॉन है, फॉर एग्जांपल अपने रूम में देखो, तो रूम में क्या है, बेस हमारा एक रेक्टेंगल है. सो बेस के अगर 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स इन टोटल, सो देयर विल बी 4 लैटरल फेसेस. लैटरल फेसेस 4 होंगे. सो नंबर ऑफ साइड्स अगर n है बेस में हमारा, सो लैटरल फेसेस विल बी n इन अ प्रिज्म. एंड लैटरल फेसेस होंगे, एक टॉप पे होगा एक बॉटम पे होगा, तो n+2 विल बी टोटल फेसेस इन अ प्रिज्म. पिरामिड में एक लेसर होगा, वन लेसर, बिकॉज पिरामिड में टॉप फेस विल नॉट बी देयर, तो n+1. हाँ, प्रिज्म में जो फेसेस होंगे वो रेक्टेंगुलर होंगे और पिरामिड में ट्रायंगुलर होंगे, बट नंबर ऑफ फेसेस विल बी n+2 इन द प्रिज्म एंड n+1 इन द पिरामिड. तो फेसेस हो गए हमारे n+2 एंड n+1 रिस्पेक्टिवली. ओके, अब फेसेस के बाद में कितने एजेस होंगे, नंबर ऑफ एजेस इन द प्रिज्म. सो बेस पे वी विल बी हैविंग n एजेस, n साइड्स होंगे बेस पे, n साइड्स होंगे टॉप पे, और n साइड्स होंगे हमारे लैटरल फेसेस पे भी, है कि नहीं? तो टोटल 3n एजेस विल बी देयर इन प्रिज्म, n at the bottom and at the top and n on the sides, तो टोटल 3n. पिरामिड में क्या होगा, बॉटम पे n ही रहेंगे, बॉटम पे सेम होगा, टॉप पे 0, टॉप पे देयर इज नो एज, तो n एजेस एट द बॉटम एंड n on the sides, तो 2n will be number of edges. Vertices, vertices in a prism, number of vertices. So at the bottom in the prism, number of vertices will be equal to n, number of sides, और top पे भी there will be n, तो total 2n vertices will be there. But in the prism only n at the bottom and 1 at the top, so n+1. Clear? Now try to observe the pattern. So if we add faces and vertices, faces plus vertices, this is equal to 3n+2, 3n+2, यानी कि edges plus 2, faces plus vertices is equal to edges plus 2, 3n+2. लेफ्ट हैंड साइड में भी आ रहा है, राइट हैंड साइड में, प्रिज्म में भी आ रहा है, पिरामिड में भी देखो, तो वहां भी ये सेम कहानी है, n+2 n+1 प्लस n+1 दैट इज 2n+2. लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2n+2 होगा, राइट हैंड साइड पे भी 2n+2 ही आएगा. तो दिस इज द रिलेशनशिप f plus v is equal to e plus 2. This is the relationship for any polyhedron as far as that is a convex polyhedron, यानी कि उसमें बीच में कोई होल नहीं है, कुछ और कहानी नहीं है. ठीक है, सो एज फार एज दैट इज अ सिंपल पॉलीहेड्रॉन, तो वहां पे हमारा हमेशा दिस रिलेशनशिप विल बी अप्लाइंग. ये फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस प्लस 2, एंड दिस इज नोन एज यूलर्स फॉर्मूला.
ठीक है, f प्लस वी इज इक्वल टू ए बाई टू, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज f प्लस वी माइनस ई, दिस इज इक्वल टू 2। बात एक ही है। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद दैट नॉलेज। गिवन हमें क्या है, वर्टिसेस और एजेस गिवन है f प्लस वी माइनस ई बाई टू, माइनस ई इज इक्वल टू नॉट बाई टू, इक्वल टू 2। वर्टिसेस गिवन है 12, एजेस दिया है 30, फेसेस फाइंड आउट करना है, तो f प्लस 12 माइनस 30 इज इक्वल टू 2, f will be equal to 32 minus 12, and hence number of faces will be equal to 20. Option C will be the answer. Okay, clear है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद में और कर लेते हैं, बिकॉज अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पिरामिड में किए वहाँ पे फॉर ऑल ट्रायंगुलर फेसेस और लेटरल फेसेस हमारा जो स्लांट हाइट था वो सेम आ रहा था, बिकॉज हमने जो बेस एज्यूम किया था दैट बेस वॉज इधर अ स्क्वायर और अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एक केस लेते हैं अपना जहाँ पे कि वी आर हैविंग अ रेक्टेंगुलर बेस, so there is a pyramid with a rectangular base that is length and breadth 18 and 10 centimeter respectively, and we have to find the total surface area of the pyramid if its height is 12 centimeter. We have to find out total surface area, and for that we need to find out lateral surface area, और lateral surface area find out करना पड़ेगा हमें lateral height, slant height. Okay, so now the base is a rectangle not a square. Sides 18 and 10. हाइट इज 12, ठीक है, हाइट को जैसे ही ड्रॉप करोगे टॉप से तो बॉटम पे कहाँ पे टच करेगी, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। तो height is equal to 12. So if we connect midpoint of a side, now since side lengths are different, so slant heights will also be different. So if we draw first slant height, let us say this is first slant height. Let us say this is equal to L1. This is A, B, C, D. This point is O. This point is P. And this is, let us say, equal to Q. So in triangle POQ, POQ is a right angle triangle. PO is equal to 12. OQ क्या होगा? OQ will be half of AB. Half of AB होगा, यानी कि OQ will be equal to 9. One side is 9, one side is 12. तो hypotenuse will be equal to 15. ऑर्थोगोनल बन रहा है, रेशियो है साइड्स का 3:4, यानी कि थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 5, 9 12, दिस मस्ट बी 15, इसका रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी कि 15 होगा हमारा साइड लेंथ PQ। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकंड स्लांट एज ड्रॉ करें, दैट इज कनेक्टेड मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। थोड़ा सा डायग्राम को प्रॉपर्ली समझने के लिए थोड़ा सा अलग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मिड पे ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम में दिखेगा ही नहीं। तो लेट अस से दिस इज हियर, दिस इज द मिड पॉइंट, this is R. So R is the midpoint of side AB. So this is another right angle triangle POR. PO is equal to 12 और OR will be half of BC, यानी कि that will be equal to 5. 5 और 12, third side will be 13. So L2 comes out to be equal to 13. L1 was equal to 15. L2 is equal to 13. तो हमारा lateral surface area क्या आ जाएगा? Will be equal to area of the triangular faces. तो फेस PAB का एरिया सेम एज फेस PCD का एरिया होगा। एरिया ऑफ PAB प्लस PBC प्लस PCD प्लस PDA। तो PAB एंड PCD का एरिया सेम होगा बिकॉज बेस भी सेम है, स्लांट हाइट भी सेम होगा फॉर PAB एंड PCD। तो एरिया ऑफ PAB विल बी 1/2 इंटू बेस इज 18 इंटू हाइट इज 13, 1/2 इंटू 18 इंटू 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकॉज PAB प्लस PCD का एरिया। सिमिलरली PBC एंड PDA का एरिया भी सेम होगा। एरिया ऑफ PBC विल बी 1/2 इंटू बेस इज 10 और हाइट इज 15,
मल्टीप्लाइड बाई 2, तो एरिया आ जाएगा 18 इंटू 13 234 प्लस 150, दैट इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें चाहिए टोटल सर्फेस एरिया, तो बेस एरिया भी इंक्लूड कर लेंगे, तो दिस विल बी 384 प्लस बेस एरिया विल बी 180 एंड हेंस 564 centimeter square. This will be our total surface area. Option B will be the answer. वॉल्यूम तो स्ट्रेट अवे दिख ही रहा, तो उसके लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 इंटू 180 इंटू 12, यानी 16 इंटू 12 720 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाता। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, सो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन डिस्कस, जो भी बातें डिस्कस, सारी सारी बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन विल डूइंग क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। इतना ही रखते हैं सेशन में, और आई बिलीव जो भी समझ किया है हमने सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स जरूर मेंशन करना। एंड अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो जरूर से करना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।